Hello dear children, how are you all? Hope you all are doing good, studying well and staying healthy. Nowadays children, you cannot go to your regular school, so I thought why not organize a special classroom for you all. So I welcome you all to Rajni ma'am's classroom. Here in this class, today we are going to learn different things about Chapter 1 of your Honeycomb textbook for Class 7. And the title of the chapter is 3 Questions. Bache, this is a story, and here after attending this class, you will be able to understand the underlying idea behind this story. You'll be able to know the correct pronunciation of new words, and also you will be able to understand the meaning of the new words. After attending this session, you'll be able to answer different questions related to this chapter, this story. Alright, so are you all ready for attending today's class? Good, very good. So children, as you know, the name of the chapter is 3 Questions. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? So this story is basically about a king who has 3 questions in his mind and he wants to know the answers of those 3 questions. Now, did he get the answers? Where did he get the answers? What happened with the king? What changes occurred? So all this we'll get to know in this chapter. So are you all ready? Very good. So be attentive in Rajni ma'am's class and you'll be able to understand the story well. You'll be able to know the correct pronunciation. Also, you'll be able to understand the meaning of the new words, as well as you'll be able to answer different questions related to this story after going through this session. Alright? Great. Let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार किसी राजा के माइंड में एक ख्याल आता है, एक थॉट आता है, विचार आता है कि अगर उसे 3 चीजों के बारे में पता होगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. So those 3 things were actually 3 questions in his mind. And the first question was, what is the right time to begin something? किसी काम को करने का, शुरू करने का सही समय क्या होता है? Which people should he listen to? किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए? हमारी लाइफ में होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी की बात हम सुनते हैं, हमें अच्छी लगती है. तो राजा भी ये जानना चाहता था कि मैं किसकी बात सुनूं और किसकी बात नहीं सुननी चाहिए मुझे. And third question was, what is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? So these were the 3 questions and he wanted to know the answer of these three questions so that he would never fail in his life. Let's see what happens next. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो जो किंग होता है वो अपने मैसेंजर्स को अपनी किंगडम में भेजता है. हु इज अ मैसेंजर? मैसेंजर इज वन हु ब्रिंग्स मैसेजेस. पहले के जमाने में संदेश वाहक होते थे जो राजा का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया करते थे. पहले ऐसे फोन्स और ये टेक्नोलॉजी तो होती नहीं थी, है ना बच्चों. तो इसलिए राजा ने अपनी किंगडम में अपने मैसेंजर्स को भेजा और उनको कहा कि जो कोई भी ये ऐलान करा दो, अनाउंसमेंट कर दो कि जो कोई भी मेरे इन 3 प्रश्नों का जवाब मुझे देगा तो मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. So, बहुत सारे लोग उसके पास आए. Wise men. Who is a wise person? Wise means very intelligent, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति. तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग उसके पास आए, लेकिन सभी ने अलग अलग तरीके से अपने अपने जवाब दिए उन प्रश्नों के. Differently means different variety of answers. Different variety में अलग अलग तरीके से उसके प्रश्नों के जवाब राजा को दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले क्वेश्चन के आंसर में
कुछ लोगों ने वाइस मैन जो थे उन्होंने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। टाइम टेबल तो आपको पता ही है बच्चों, टाइम शेड्यूल बनाना कि कौन से समय में क्या क्या काम होगा, तो समय सारणी जिसे आप कहते हैं, है ना, व्हाट इज टू बी डन एट व्हाट टाइम, एंड देन द किंग शुड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर राजा को पूरी डिसिप्लिन के साथ उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इस तरह से राजा अपना सारा काम समय से कर पाएगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ और लोगों ने कहा कि ये तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि हम एडवांस में ही हम डिसाइड करें कि कौन सा समय सही है किसी काम को करने के लिए। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ ने बताया कि राजा को बहुत माइन्यूटली बारीकी से ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि क्या क्या उसके आसपास चीजें हो रही हैं, और मूर्खतापूर्ण जो प्लेजर्स हैं, जो मजे की चीजें हैं, वो उसे नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, बचना चाहिए उनसे, और उसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो नेसेसरी मीन्स असेंशियल, जो सबसे ज्यादा असेंशियल चीजें उसके लिए हैं उस टाइम पर जो उसे करनी चाहिए, वो उसे राजा को पूरी करनी चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. तो कुछ लोगों ने ये बताया कि राजा के पास एक काउंसिल ऑफ वाइस मेन होना चाहिए। वाइस मीन्स इंटेलिजेंट, और काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू गिव एडवाइस टू द किंग ऑफ, एंड दे मेक रूल्स। राजा के पास एक सलाहकारों का एक ग्रुप होना चाहिए जो प्रॉपर टाइम पर राजा की हेल्प कर सके। और वो किस लिए होना चाहिए? क्योंकि एक इंसान के लिए उनके हिसाब से ये बहुत मुश्किल रहता है डिसाइड करना करेक्टली कि काम को करने का सही समय क्या है। तो उस समय पे जो परिषद के लोग हैं, जो काउंसिल के लोग हैं, वो उसकी हेल्प कर देंगे। But then others said there were some things which could be urgent. फिर इस पर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई कुछ ऐसी भी तो बातें हो सकती हैं जो राजा को तुरंत से डिसाइड करनी हो, अर्जेंट मैटर है और तुरंत जल्दी से उनको सोल्यूशन निकालना है या उसके ऊपर ऑर्डर देना है या डिसीजन लेना है। These things could not wait for the decision of the council. तो ऐसे में काउंसिल से हेल्प लेने का समय ही नहीं होगा। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only the magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. और फिर कुछ ने कहा कि भाई ऐसे में तो फिर सिर्फ एक मैजिशियन ही काम आ सकता है, क्योंकि मैजिशियन जो है वो फ्यूचर में हमें देखकर पहले से ही बता देगा कि काम ये वाला करना है और इसको काम को करने के लिए ये सही समय है। तो ऐसे में राजा को किसके पास जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। नाउ हु इज अ मैजिशियन? अ विजार्ड, है ना, जादूगर जिसे कहते हैं। तो एक जादूगर के पास जाना चाहिए। If there answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा के जो सलाहकार होते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आप बताओ मुझे जल्दी से कि सेकेंड क्वेश्चन क्या था? हाँ, वेरी गुड। विच पीपल ही शुड टेक एडवाइस फ्रॉम, उसे किन लोगों की सलाह लेकर काम करना चाहिए। तो कुछ ने बताया कि काउंसलर्स की सलाह लेनी चाहिए, फिर कुछ ने कहा कि प्रीस्ट की सलाह लेनी चाहिए, और कुछ ने कहा कि नहीं डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, और कुछ ने बोला कि नहीं सोल्जर्स की सलाह लेना बहुत जरूरी है। नेसेसरी मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है, असेंशियल। तो बहुत कंफ्यूजन ये तो क्रिएट हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. What was the third question? How to decide what the most important thing to do was. कि ये कैसे डिसाइड हो कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज है करने के लिए। तो कुछ ने कहा कि इसका जवाब तो भाई साइंस दे सकता है, कुछ ने कहा कि फाइटिंग से ही इसका हल हो सकता है, और कुछ ने कहा कि नहीं जो रिलीजियस वर्शिप होती है, पूजा पाठ से, उससे ही हल मिलेगा। अब देखो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो देखिए अब आगे क्या होता है।
As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब राजा के पास इतने अलग अलग तरह के जवाब आ रहे थे, so he was not at all satisfied with any of the answers. Satisfied means संतुष्ट नहीं था. So he gave no reward to anyone. Instead, मतलब उसके जगह पे उसने क्या सोचा कि उसको क्या करना चाहिए, किसी हर्मिट के पास जाके सलाह लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए. एडवाइस में सलाह लेनी चाहिए. नाउ हु इज अ हर्मिट? कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी? एक दो बच्चों को मालूम है. हर्मिट को बेटा हिंदी में कहते हैं संत या सन्यासी, एंड इन इंग्लिश यू कैन से हर्मिट इज अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड, और यू कैन से लोनलीनेस एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन. जो कोई अकेले में रहते हैं और अपने जो रिलीजियस, जो उनके धार्मिक, जो भी जिससे भी वो बिलोंग करते हैं, उसका वो बस पूजा पाठ करते हैं और बड़ा सादा सा जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे हम हिंदी में संत या सन्यासी कहते हैं. तो उसने कहा कि राजा ने सोचा कि मुझे किसी हर्मिट के पास जाके सलाह लेनी चाहिए. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट जो कहाँ मिलेंगे अब? हर्मिट जो संत साधु हैं वो पास ही के वहां जंगल में, वुड मीन्स स्मॉल फॉरेस्ट, सो वहां पास ही के वुड में रहते थे वो, और जहां से वो कभी बाहर नहीं आते थे, वहीं पर उनका घर था और वो वहीं रहते थे. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. वो ज्यादा किसी बड़े बड़े लोगों से मिलते नहीं है, सिंपल लोगों से ही मिलते हैं. तो राजा ने क्या किया, फिर राजा ने बड़े ऑर्डिनरी मीन्स बड़े साधारण से कपड़े पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब हर्मिट से मिलने जाना था, तो इसलिए राजा ने अपना हॉर्स जो था वो भी वहीं छोड़ दिया अपने बॉडीगार्ड्स के पास में, और हर्मिट से मिलने के लिए अकेले ही राजा जो था वो चल पड़ा. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in his hut. जैसे ही वो राजा जो था वो हर्मिट के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हर्मिट क्या कर रहे हैं. हर्मिट जो है वो ग्राउंड में, मैदान में से कुछ खोद रहे हैं अपनी हट के सामने. फ्रंट मीन्स सामने, और डिगिंग मतलब खुदाई करना, तो कुछ खुदाई कर रहे हैं वो. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. ग्रीटेड मतलब होता है बच्चों किसी को विश करना. जैसे आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं एंड यू विश योर मैम गुड मॉर्निंग, नमस्ते मैम, ऐसे बोलते हैं ना, तो किसी को विश करना. तो जब कोई आपके घर आता है तो आप भी तो विश करते हैं ना. तो ऐसे ही हर्मिट ने राजा को ग्रीट किया और फिर अपना काम करता रहा वो. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वर्कड. ही ब्रेथ्ड हैवीली. अब जो हर्मिट था वो ओल्ड था, वीक मीन्स कमजोर था, और क्योंकि वो काम कर रहा था तो उसका सांस जो है वो, सांस में हैवीनेस आ रही थी. ब्रीदिंग में आप भी जब बहुत तेज रनिंग करते हैं, भागते हैं, तो आपका सांस फूल जाता है ना, सो यू ब्रीद हैवीली, उसको बोलते हैं उस फ्रेज को. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो उसने फिर से वही 3 प्रश्न राजा ने हर्मिट के सामने दोहराए कि भाई मैं तो इन 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सारे जवाब दे देंगे. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो हर्मिट ने उसकी सारी बातें सुन ली राजा की, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया, अपना डिगिंग वर्क करते रहे. तब राजा ने कहा कि भाई आप तो बहुत टायर्ड से फील हो रहे. टायर्ड मीन्स थकावट हो गई है आपको. लेट मी टेक द स्पेड. बेटा स्पेड आप जानते होंगे कि इसका मतलब होता है, स्पेड एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि खुदाई के काम में उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप हिंदी में फावड़ा या कुदाल कह देते हैं. तो वो उस राजा ने बोला हर्मिट को कि मैं तुम्हारी जगह पे मैं स्पेड से काम कर देता हूं. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. जब कोई आपके लिए काम करता है तो आप भी तो थैंक्स बोलते हैं ना. तो ऐसे ही हर्मिट ने राजा को थैंक्स बोला और फिर उसको जो स्पेड था वो दे दिया. एंड ही सैट डाउन देयर फॉर व्हाट पर्पस? टू टेक सम रेस्ट. अब रेस्ट करने के लिए राजा जो था वो वहां पर बैठ गया.
ये देखो, ये है स्पेड, कैन यू सी? ये स्पेड दिख रहा है ना? अच्छा तो बताओ जल्दी से, ये कौन है? यस, ही इज द हर्मिट. व्हाई? हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज द हर्मिट? बिकॉज ही, हाँ इसमें बताया गया है ना कि हर्मिट जो था वो ओल्ड था और वीक भी था और खुदाई कर रहा था. देखो ये इसके हाथ में भी है, एंड ही इज द किंग. चलो आगे चले अब. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड्स क्या होते हैं बच्चों? एक बेड तो होता है जो आप जिस पर आप रात को आराम करते हैं, सोते हैं ना, बिस्तर जो होता है. एक बेड का मतलब होता है अ गार्डन प्लॉट इन विच फ्लावर्स आर ग्रोन, जिसमें फूल आप उगाने के लिए, आपने देखा होगा कि घरों में भी क्यारियां सी बनाते हैं, है ना, क्यारी बनाते हैं जिसे आप हिंदी में कहते हैं, तो उसको भी फ्लावर बेड कहते हैं. तो राजा ने जब 2 बेड्स वहां पर डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग, सो सेकंड फॉर्म मींस पास्ट टेंस है उसका. तो तब उसने जब 2 जो बेड्स थे वो बना लिए तो वो रुका और फिर से उसने अपने क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट किए. द हर्मिट गेव नो आंसर, अभी भी कोई जवाब नहीं मिला, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. हर्मिट ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि अब तुम रेस्ट कर लो और मैं काम करता हूं. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन राजा जो था उसने उसे हर्मिट को स्पेड नहीं दिया और वो काम करता रहा डिगिंग का. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise men for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. वो कह रहे कि बहुत देर हो गई है, अब जब शाम होने को आई तो राजा ने जो सनसेट जब हुआ, शाम होने को आई, तो राजा ने जो स्पेड था वो ग्राउंड में स्टक मीन्स वहीं ग्राउंड में उसको टक करके रख दिया और फिर उससे बोला कि मैं तो यहाँ पर वाइस मैन आपसे अपने 3 प्रश्नों का जवाब लेने के लिए आया था. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दीजिए आप क्यों नहीं दे सकते हैं, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. Hermit ने कहा कि वो देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ की तरफ आ रहा है. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो राजा ने जैसे ही टर्न अराउंड मीन्स मुड़कर गोल घूमकर पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बियर्डेड मैन जो है, बियर्ड क्या होता है, जिसके दाढ़ी होती है, तो एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस किया हुआ है. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि ब्लड बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, बह रहा है बाहर की तरफ. और जैसे ही व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा ही फेंटेड मीन्स वो बेहोश हो गया. ही लॉस्ट हिज सेंसेस. सो अब क्या हुआ, वो वहां पर आके राजा के सामने फेंट हो गया और वहीं के वहीं गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो राजा ने और हर्मिट ने उसके क्लोथ्स को थोड़ा सा हटाया और उसने वहां पर क्या देखा कि उसका जो है बहुत बड़ा सा वहां पे वूंड हुआ है. वूंड क्या होता है बच्चों? वूंड मीन्स जख्म, है ना, चोट लगी हुई है, बहुत बड़ा सा जख्म वहां पर हो रखा है और उसमें से क्या हो रहा है, उसमें से ही तो खून आ रहा था, है ना. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने जल्दी से अपना हैंकरचीफ निकाला. हैंकरचीफ क्या होता है? हैंकरचीफ मीन्स आपका जो रुमाल होता है ना, तो राजा ने अपना रुमाल निकाला और उसका जो ब्लड था वो रोकने की उसको कोशिश की, वो रुमाल लगा के, लेकिन ब्लड जो था वो फ्लो कर रहा था, बह रहा था. The king re-dressed the wound until at last the bleeding stopped. जब किसी के ब्लड निकलता है तो उसकी ड्रेसिंग करते हैं ना,
अच्छे से दवाई लगा के पट्टी लगा देते हैं ताकि वो जो है खून जो है वो बंद हो जाए, जख्म में से खून निकलना बंद हो जाए। तो उसने एक बार किया राजा ने, तो वो खून बंद नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर रीड्रेसिंग किया उसका, उसने दोबारा से उसके वुंड को अच्छे से साफ करके फिर से उसके ऊपर लगाया, तो फिर वो ब्लीडिंग जो थी वो स्टॉप हो। The man felt better and asked for something to drink. उसको थोड़ा सा better feel हुआ और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा जो था वो ताज़ा पानी लाया और उसने उसको दे दिया। By this time the sun had set and the air was cool. When the sun sets, it's the इवनिंग टाइम, और शाम को थोड़ा सा मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो वहां पर भी ठंडा हो गया। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प से, वो जो अब शाम को बाहर तो रह नहीं सकते उसको लेके, है ना, तो इसलिए वो वुंडेड मतलब जो जख्मी व्यक्ति था, जिसके जख्म हो रहा था, चोट लगी हुई थी, उसको वो हट के अंदर लाया। इनटू मतलब बाहर से अंदर, जब हम कोई चीज लेकर आते हैं तो उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं, तो बाहर था वो अंदर लेके गया, इसलिए इनटू प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया है। सो वो हट में लेकर आए उनको एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब ये वाला कौन सा बेड होगा? क्या ये कैरी वाला बेड है? नहीं नहीं, ये तो जिस पर सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो वाला बेड है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। जैसे ही उसको बेड पर लिटाया तो वो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम चुप हो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। जो राजा था उसने भी बहुत ज्यादा काम किया था और वो भी आज बहुत ज्यादा पूरा काम करने से थक गया था। सो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो वही फ्लोर पे ही, जमीन पर ही वो लेट गया और वो सो गया रात में। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who this strange bearded man lying on the bed was. तो उसको लग रहा था कि अब जो ये जो इंसान है ये है कौन आखिर। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो उसने, जो बियर्डेड मैन था, उसने राजा से माफी मांगी जब उसने देखा कि राजा जो है वो जाग गए हैं। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. उसने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। राजा ने क्या बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और ऐसे माफी मांगने वाली तो कोई बात है ही नहीं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उसने कहा कि राजा जी, आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। I am that enemy of yours. मैं वही दुश्मन हूँ आपका। Who swore revenge on you, जिसने आपसे बदला लिया था। Revenge means बदला लेना। Because, क्यों बदला क्यों लिया था? Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को सजा दी थी, मृत्यु दंड दिया था और उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सीज कर ली थी। सीज मतलब जब्त कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, took away. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो मुझे मालूम था कि आप राजा जो हो वो हर्मिट से मिलने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैंने अपना माइंड सेट किया कि मैं रास्ते में ही आपको मार दूंगा। But the day passed and you did not return. लेकिन एक दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए। So I left my hiding place. तो जहां में hiding means छुपा हुआ, जो मेरा जगह था जहां मैं छुपा हुआ था, वहां से मैं निकला, उससे मैंने जगह को छोड़ा। And I came upon your bodyguard. तो मैं आपके बॉडीगार्ड्स के पास आया। Who recognized me. आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया। And wounded me. और मुझे जख्मी कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहां से तो बच निकला, escaped मतलब बचकर निकल जाना, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे wounds की ड्रेसिंग नहीं करते, अगर मेरी मरहम पट्टी wounds की आप नहीं करते तो मैं तो मर ही जाता। I wish to kill you. मैंने तो आपको मारने की इच्छा करी। And you have saved my life. और आपने मेरी जान बचाई।
Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and would order my son to do the same. Forgive me. उसने कहा कि अब अगर मैं जिंदा रहता हूं तो मैं आपके फेथफुल सर्वेंट की तरह आपको सर्विस दूंगा और अपने बच्चों को भी, अपने सन्स को, अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा करने के लिए. forgive me मतलब मुझे माफ कर दीजिए. So he apologized for whatever he has done. So please pardon me, ऐसे उसने बोला. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा को बहुत अंदर से खुशी हुई और उसने जब अपने दुश्मन के साथ शांति बनाई तो राजा को बहुत खुशी और वो भी इतनी आसान तरीके से उसने अपने दुश्मन को क्या बना लिया, अपना फ्रेंड बना लिया, है ना. तो हमारे बिहेवियर से हम अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. तो उसने राजा ने न केवल उसको माफ कर दिया बल्कि राजा ने ये भी बोला कि मैं अपने सर्वेंट्स को और अपने डॉक्टर को तुम्हारे पास भेज दूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और जो भी उसकी प्रॉपर्टी राजा ने ली थी उसने कहा कि मैं वो भी तुमको लौटा दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. उसने अब wounded man को वहां पर छोड़ा और king जो था वो हट से बाहर आया और किसको देखने लगा? Looked around means चारों तरफ किसको ढूंढने लगा वो? किसको? hermit को. हाँ. Before going away, he wished once more to get answers to his question. वहां से जाने से पहले उसने एक बार फिर से विश किया कि काश मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो एक दिन पहले उन लोगों ने मिलकर क्यारियां बनाई थी ना बच्चों, बेड्स बनाए थे जो, अब आज वो अपने नीज पर झुककर और उसमें बीज बो रहा था. सोइंग सीड्स मीन्स बीज को, हाँ, बीज को डालते हैं ना अंदर ताकि उसमें से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से पौधे निकले. तो ही वॉज स्कैटरिंग सीड्स ओवर द लैंड फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रोथ. फिर उसमें से क्या निकलेंगे? सुंदर सुंदर फूल निकलेंगे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. उसने कहा कि हर्मिट मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि प्लीज, आई बेग यू मीन्स मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दो. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो उसने hermit ने क्या बोला? उसने वैसे ही बैठे बैठे ग्राउंड की तरफ ही बैठे बैठे बोला कि तुम्हें तो तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. और फिर बैठे बैठे ही उसने राजा की तरफ ऊपर की तरफ देखा एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? वो कह रहे कि मुझे कैसे जवाब मिल गया, इसका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. हाँ, अब सारी बात समझ में आई कि अगर हर्मिट ने उसे समझाया कि अगर तुमने मेरी वीकनेस को देखते हुए मुझ पर दया नहीं दिखाई होती कल शाम को और मेरे लिए यहाँ पर बेड्स को खोदने के लिए, क्यारियां खोदने के लिए नहीं लग गए होते तो तुम यहाँ से चले गए होते. और फिर then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. वो कह रहे कि अगर तुम यहाँ से चले गए होते तो उस आदमी जो वहां पे छुपा हुआ था तुम्हारा दुश्मन, उसने तुम्हें मार दिया होता. अब तुमने विश क्या किया? तुमने मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए विश किया, मेरी हेल्प के लिए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था? कि जब तुम यहाँ पर किसी की हेल्प करने के लिए बेड्स डिगिंग कर रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. और उस टाइम पर मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन था. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और उस टाइम पर मेरे लिए मेरी हेल्प करना तुम्हारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था.
आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, उसके बाद में जब आदमी हमारी तरफ दौड़ कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा टाइम कौन सा जरूरी था? उस टाइम पर उसकी केयर करना, उसकी हेल्प करना, उसके जख्म को मरहम पट्टी करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और फिर नेक्स्ट जब पल आया, अगला पल आया, तो उस टाइम पर उसका सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या था? उस जख्मी आदमी की हेल्प करना। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके वुंड्स पर मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो तो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, तुम्हारे से अपनी दुश्मनी के साथ ही वो मर गया होता। उसने पीस तुमसे, शांति से उसने दोस्ती तुमसे की ही नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। सो उस टाइम पर सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी कौन सा था? वो वुंडेड पर्सन था। And what you did for him was your most important business. So whatever he had done at that time for that wounded person was the most important action of that time. है ना? अगर वो उस टाइम पर सही समय पर उसकी मरहम पट्टी नहीं करता तो वो हो सकता था कि वो मर भी सकता था। तो इस तरह से ये तीनों जवाब उसको फिर से मिल गए। Remember then, there is only one thing that is important and at that time is now. तो ये बच्चों आपके लिए भी समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हर्मिट ने राजा को एक बात बताई कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो क्या है? वो टाइम है नाउ, कि इस समय पर आप क्या करते हैं। कौन सा टाइम है? नाउ। What you are doing right now. जो बीत गया है बच्चों वो तो पास्ट है, जो आने वाला है उसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन अभी का जो पल है वो हमारा अपना है। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये पल आपका अपना है। इसको करने में आपको एकेडमिक्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह से हमें कहाँ जीना चाहिए? कौन से समय में? नाउ में जीना चाहिए। सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। जो बीत गया है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ याद कर सकते हो, उसके लिए रो सकते हो, हंस सकते हो, उदास हो सकते हो, है ना, लेकिन उस समय का आप कुछ कर नहीं सकते। जो फ्यूचर में आने वाला है उसके लिए भी एक्शन आपको आज ही लेना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम? नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। और उसी में ही आपको एक्ट करना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति है, पावर है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। जिस समय में जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उस टाइम पर वही पर्सन बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास हेल्प के लिए आया है तो उस टाइम पर उसकी हेल्प के बारे में आप सोचेंगे या फिर वो सोचेंगे कि नहीं घर पे जाके मुझे ये काम करना है, वो करना है, या कल मैं इस पर्सन के साथ था, है ना? ऐसा तो नहीं करते हैं। तो जिस समय पर जिस व्यक्ति के साथ हैं तो वही इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाता है। पहले प्रश्न में मिल गया कि कौन सा समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हो गया नाउ। और सेकंड में है कि कौन सा पर्सन जिसकी बात आपको सुननी चाहिए, तो वो पर्सन जो उस समय पर उस मोमेंट में आपके साथ है। For no one knows what will happen in the future. क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं मालूम कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है। And whether we will meet anyone else, और क्या हम किसी और दूसरे व्यक्ति को मिलने वाले हैं वो भी नहीं मालूम। अभी जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं कम से कम उसके साथ तो अपना जो भी हमें काम है या जो भी वो चाहता है, या जो अगर हम हेल्प कर सकते हैं, उसकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, कम से कम वो तो करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। जो भी व्यक्ति हमारे पास आया है अगर हम किसी तरह से उसकी हेल्प कर पाए, उसकी सहायता कर पाए, तो वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है, वही ज्यादा एक्शन इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर करना। Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि इसी पर्पस के लिए हमें इस वर्ल्ड में भेजा गया है। तो अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है, यू शुड ऑलवेज हेल्प दैट पर्सन, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सन कल आपसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट का बच्चों आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और फ्यूचर आपका तभी अच्छा होगा जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से जिएंगे, उसको 100% देंगे। So I hope you like this story. This story is retold by Leo Tolstoy. Retold का मतलब होता है कि पहले कहीं ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने सुनी होगी या पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस कहानी को अपने तरीके से प्रेजेंट किया है। So you liked my class?
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और अगले लेसन में आपको समझाने के लिए जल्दी ही मैं आपकी क्लास अरेंज करूंगी। टिल देन यू गो थ्रू दिस लेसन वेल, यू रीड द स्टोरी अगेन, you write all the difficult words, learn the difficult words, spelling अच्छे से लर्न करिए, खूब मेहनत कीजिए अपनी लाइफ में ताकि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी गुड चिल्ड्रन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। येस ऑफ कोर्स डू टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। अब आपकी फैमिली के लोग, आपके आसपास जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए। अपना तो आप रख ही रहे हैं और अपनी स्टडीज का भी बहुत ध्यान रखिए। So we'll soon meet again in another session. Till then, take care. Bye-bye.